2 minutes. Okay, so now we are going to do Julius Caesar Act 3, Scene 3. Okay, and I'm going to share this page also, जिससे हम लोग को थोड़ा सा पढ़ने में आसानी हो जाएगा. Now, before starting, I would like you people to note a word. एक word होता है, उसका मतलब होता है rhetoric. लिखो आप लोग सब rhetoric. 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 लिखो word ये. What do you write it for you people here? Rhetoric. किसी को इसका मतलब मालूम है? Yeah. Rhetoric. Can you see the word now? May I tell you the Yes. You want to tell me the meaning of rhetoric, Julie? Yes. Okay, tell me. Usually rhetoric is used when you're asking something like a question. It's a question which already has the answer in it. Uh, Not exactly. Rhetoric. It's like suppose somebody is late and you're asking them, "Are you late?" Are you late? That is not rhetoric. Rhetoric is when that person gives you an answer. Okay, rhetoric is not when you are asking a question. Rhetoric is when that person will give you an answer. Actually, rhetoric is a skill of using language to persuade or influence people. Okay, basically, it means like choosing words and technique carefully to make your argument more convincing. Okay, when you want to convince a people, when you want to actually people to believe you. Okay, so all the examples and all the anecdotes and all the stories which you make up to make a person believe in your story is rhetoric. Okay, basically it is something which the politicians do. Okay, understood? So now you understand why I'm using this word rhetoric. Rhetoric is, I am using this word because Mark Antony has been able to use his rhetorics to convince people. Understood? So you can actually write this. This is going to help you in writing your answer. So you can write the meaning of this word. So I'm telling you the meaning of the word. Just write it down. Right. It is the skill of using language. Everybody, please write it down. Rhetoric basically means the skill of using language. The skill of using language. बहुत सारे YouTube के बच्चे अभी सोच रहे होंगे चलो इसको skip कर देते हैं आगे भाग जाते हैं, but that is not going to help you in writing your answers. Okay, so please note down the meaning. It is the skill of using language to persuade or influence people. Okay, it is the skill of using language to persuade or influence people. It involves choosing words and technique carefully to make your argument more convincing. It involves choosing words and techniques carefully to make your argument more convincing. So when you go to a TV debate, okay, nowadays there are a lot of debates happening everywhere. You will find people using rhetorics. Okay, they are using expressions, they are using language, they are using anecdotes, speech, their experience, and whatever and whatnot, just to convince people, just to make their arguments look more convincing. So everybody have understood, I guess, now? All clear? Okay. नाउ ये जो थीम है इस स्टोरी इस सीन का एक्ट 3 सीन 3 का, ये थीम क्या चीज के लिए रिवॉल्व करता है? ये रिवॉल्व करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉब्स मेंटालिटी. अगर फर्स्ट टाइम में आप लोग को सारा, मैं एक्चुअली अगर आप लोग को एक एक वर्ड लिखवाने जाऊंगा अभी तो बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑफ करके भाग जाएंगे, है ना? तो मैं तुम लोग को अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, और जिसको नोट डाउन करना है वो वीडियो को पॉज कर करके या स्लो करके लिख सकता है ना, या बार बार देख सकता है वीडियो को. तो मैं तुम लोग को बता दे रहा हूँ व्हाट इज द थीम ऑफ दिस. ये एक्चुअली ये सीन क्यों किया गया है? दिस थीम एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉब्स मेंटालिटी. ये सीन हम लोग को एक मॉब की मेंटालिटी के बारे में बताएगा. बेसिकली फिकल माइंडेड पीपल या फिकल माइंडेड मॉब या फिकलनेस ऑफ द मॉब एंड द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ओके, सो यहाँ पर किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को जो लीडर्स हैं वो लोग मैनिपुलेट करते हैं. सो आई कैन जस्ट रीड इट आउट टू यू पीपल. द थीम रिवॉल्व्स अराउंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मॉब्स मेंटालिटी, फिकलनेस या फिकल माइंडेडनेस एंड द मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन. ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि पब्लिक इज इजिली इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, रिटोरिक्स
एंड एक्शंस ऑफ फ्यू, मतलब few political leaders can very easily influence the emotions, the rhetorics and actions of the mob. Understood? तो ये जो सीन है यहाँ पर हम लोग देखना चाहेंगे या देखेंगे कि मॉब कितनी वायलेंट हो सकती है, मॉब कितनी फिकल माइंडेड हो सकती है, बेसिकली कितनी बेवकूफ हो सकती है, और कैसे वो लोग इमोशंस के कारण वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, आप एक बार मॉब को चार्ज अप कर दो, आप एक बार मॉब को आग लगा दो, और वो लोग पूरी 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 सब जगह आग लगा देंगे वो लोग ना। तो एंथनी ने अपने, अगर तुम लोग को रिमेंबर है, X3 Scene 2 के लास्ट में क्या बोला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन उसने बोला था, क्या बोला था कि आई हैव मिस्चिफ दाउ आर सेट अफुट। याद है तुम लोग को वो लाइन? उसने बोला था मिस्चिफ दाउ आर सेट अफुट, माने बेसिकली मैंने मिस्चिफ को खुला छोड़ दिया है, अब तुमको जो करना है करो, तुम अपना कोर्स ले लो, है ना। तो उसने ऑलरेडी आग लगा दी है, और अब देखो मॉब किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो इस सीन में हम लोग मॉब मेंटालिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब इस सीन में क्या हो रहा है, सिन्हा द पोएट तो सीन में एंटर कर रहा है, सिन्हा द पोएट। सिन्हा का नाम सुन के कुछ गड़बड़ लगा तुम लोग को? कुछ 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 ऐसा लगा? सिन्हा, सिन्हा, सिन्हा कौन था? सिन्हा, सिन्हा कॉन्स्पिरेटर। क्या बोला था? स्पीक हैंड्स फॉर मी। वो तो कैस्का बोला था ना, कैस्का, स्पीक स्पीक हैंड्स फॉर मी ना, कैस्का ने बोला था। तो सिन्हा कौन है? सिन्हा इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स। ओके, तो भैया एक देश में बहुत जन का नाम सिन्हा हो सकता है, पर पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पब्लिक को सिन्हा नाम से नफरत है। जिस जिसका नाम सिन्हा हो, चाहे वो जॉन सीना ही क्यों ना हो, पब्लिक उसको मार देगा, अपना नाम सिन्हा नहीं रखने का भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिन्हा द पोएट है वो एंटर कर रहा है। ठीक है, और सिन्हा द पोएट, यहाँ पर सिन्हा द पोएट क्लियरली मेंशन किया गया है, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो समझ सके कि विलियम शेक्सपियर क्या बोलना चाह रहा है। दिस इज नॉट द सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, दिस इज सिन्हा द पोएट। नाउ सिन्हा द पोएट अपने मन में क्या बोल रहा है? आई ड्रीम टू नाइट दैट आई डिड फीस्ट विद सीजर। बोला मेरे को रात को सपना आया कि मैंने सीजर के संग फीस्ट किया है, पार्टी किया है। ठीक है, एंड थिंग्स अनलकी चार्ज माय फैंटेसी, एंड थिंग्स अनलकी चार्ज माय फैंटेसी क्यों बोल रहा है? अब इसको मालूम पड़ गया है कि सीजर हैज बीन असैसिनेटेड। तो इसको लग रहा है कि कल रात को मैंने सपना देखा था कि सीजर और मैं संग में पार्टी कर रहे हैं, अब मेरे को आज मालूम पड़ा कि सीजर को मार दिया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज रात को हम लोग दोनों फिर पार्टी करेंगे, लेकिन नॉट ऑन अर्थ बट समवेयर इन द हेवन। तो बोला कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी जो फैंटेसी है, ठीक है, वो मेरे को बोल रही है कि यार सीजर के संग गलत हुआ तो कहीं मेरे संग तो गलत नहीं होगा। फिर वो बोल रहा है यहाँ पे फोर शैडोइंग चल रहा है। यू नो व्हाट इज फोर शैडोइंग? एनीबॉडी, व्हाट इज फोर शैडोइंग? Predict what will happen in future. करेक्ट, फोर शैडोइंग बेसिकली माने आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो फोर शैडोइंग बेसिकली यहाँ पर चल रहा है कि आगे सीन में क्या होने वाला है। तो सिन्हा खुद ही बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। आई हैव नो विल टू वॉन्डर फोर्थ ऑफ डोर्स, मुझे बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। येट समथिंग लीड्स मी फोर्थ, लेकिन फिर भी कुछ है जो मुझे बाहर लेकर जा रहा है ना। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना भैया, जब आपकी मौत आती है तो वो आपको लेकर जाएगी बाहर, आपको छोड़ेगी नहीं। तो इन भाई साहब का भी क्या नाम है, डेथ आने वाला है ना। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर जो है वो फोरशैडोइंग कर रहे हैं। सिन्हा बोल रहा है कल रात को मैंने फेस्ट किया था सीजर के संग इन माय ड्रीम्स, और आज सीजर मर गया, तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, बाहर जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं है, पर पता नहीं क्यों आई एम गोइंग आउट। ठीक है, तो एक तरफ से आता है सिन्हा द पोएट और दूसरी तरफ से आ रही है मॉब, सिटीजन्स। ओके, तो पहला सिटीजन पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम? सेकंड बोल रहा है विदर आर यू गोइंग, कहां जा रहा तू? थर्ड सिटीजन वेयर डू यू डुएल? फोर्थ सिटीजन आर यू मैरिड मैन और अ बैचलर? ठीक है, तो मैंने देखो एक संग इतना सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला बोल रहा है नाम क्या है, जल्दी बता, कहां जा रहा है, ठीक है, कहां रहता है तुम? और फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है आर यू अ मैरिड मैन और अ बैचलर? चार क्वेश्चन, धक 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 धक, रैपिड फायर क्वेश्चंस सीना के ऊपर। सेकंड सिटीजन बोल रहा है आंसर एवरी मैन डायरेक्टली, सीधा सीधा आंसर देना। फर्स्ट सिटीजन एंड ब्रीफली और एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड, इधर उधर मत घुमाना बात को। फर्स्ट सिटीजन एंड वाइजली, समझ के आंसर देना। वन बैड आंसर कैन कॉज यू योर लाइफ, है ना, तो समझ के देना। थर्ड सीजन एंड ट्रूली यू वर बेस्ट, और बिल्कुल सच आंसर देना। वी आर इन नो मूड ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो जो सही जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही आंसर तुरंत तुमको देना है,
और एकदम स्मार्टली देना है। अगर तुमने कोई भी आंसर इधर उधर दिया तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अब सीना द पोएट क्या बोल रहा है, व्हाट इज माय नेम, पहला क्वेश्चन, ओके। विदर आई एम गोइंग, वेयर आई एम गोइंग, सेकंड क्वेश्चन। वेयर डू आई ड्वेल, मैं कहां रहता हूं, थर्ड क्वेश्चन। एंड द फोर्थ क्वेश्चन, एम आई मैरिड मैन और अ बैचलर, फोर्थ क्वेश्चन है कि क्या मैं मैरिड मैन हूं बैचलर हूं। देन टू आंसर एवरी मैन डायरेक्टली एंड ब्रीफली, wisely and truly, wisely I say I am a bachelor। अब ये पोएट लोग का ना आदत नहीं जाएगा, यहाँ पर जान हलक में फंसा हुआ है, लोग मार देंगे तुमको, लेकिन उसको अपना पोएटिक मैंने दिखाना है कि हम राइटर है ना भाई, तो हम तो दिखाएंगे थोड़ा सा अपना इंग्लिश का कंट्रोल दिखाएंगे हम। तो बोल रहा है वाइजली आई से आई एम अ बैचलर, माने मैं समझदारी से बोल रहा हूं कि मैं बैचलर हूं। समझ मारी बात को। तो क्या हो रहा है, सबको मैं आंसर कर रहा हूं डायरेक्टली एंड ब्रीफली, वाइजली एंड ट्रूली, एंड वाइजली आई से आई एम अ बैचलर। तो सेकंड सिटीजन भड़क जाता है, बोला अच्छा वाइजली आई से आई एम अ बैचलर क्यों बोला, दैट्स एज मच एज टू से दे आर फूल्स दैट मैरी। तो बोला तू बोलना क्या चाहता है, तू वाइज है कि तू बैचलर है, मतलब जिन्होंने शादी की वो सब बेवकूफ है ना, that all the people who are married they are fools, that is what you are trying to say, that's as much as to say they are fools that marry। बोला you will bear me a bang for that, इसके लिए तुमको एक घूसा पड़ेगा। I fear, proceed directly, बोला ऐसा फालतू बात मत करो, सीधा सीधा और सही सही जवाब। सीना द पोएट, डायरेक्टली मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू सीजर्स फ्यूनरल, मैं सीजर के फ्यूनरल में जा रहा हूं। चलो सेकंड आंसर आ गया। फर्स्ट रीजन, अच्छा एज अ फ्रेंड और एन एनिमी, कैसे जा रहा भाई, दोस्त की तरह जा रहा है कि दुश्मन की तरह जा रहा है। सीना द पोएट, ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड, मैं तो उसकी फ्यूनरल में एज अ फ्रेंड जा रहा हूँ। सेकंड सीजन बोला अब सही आंसर दे रहा है, दैट मैटर इज आंसर डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली और सीधा आंसर दिया कि एज अ फ्रेंड जा रहा है, बेसी बात को नहीं घुमाया। ओके फोर्थ सिटीजन, फॉर योर ड्वेलिंग, रहता कहाँ है ब्रीफली बताओ, कहाँ रहता तुम्हारा घर का एड्रेस, का आधार कार्ड दिखाओ। सीना द पोएट, ब्रीफली आई ड्वेल बाय द कैपिटॉल, बोला कैपिटॉल के पास पे ही मेरा घर है। अच्छा थर्ड सीजन बोलता है सब हो गया आंसर, अब मेरे को बताओ व्हाट इज योर नेम सर, ट्रूली सच सच बोलो नाम क्या है। तो सिन्हा बोलता है द पोएट, ट्रूली माय नेम इज सिन्हा, और इसने यहां कर दिया गुना। ठीक है, बोलता है माय नेम इज सिन्हा और उसने कर दिया गुना। ठीक है, फर्स्ट सीजन बोलता है मार 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 मारे के मार के मार के मार, टीयर हिम टू पीसेस, ही इज अ कॉन्स्पिरेटर, मारो इसको, ये कॉन्स्पिरेटर है। ठीक है, ये सीजर को मर्डर है सीजर का, इसको मारो अभी तुरंत मारो। खाली नाम सुन के ही रेडी हो गया मारने के। Sina the poet चिल्लाया, no 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 no, I am Sina the poet, I am Sina the poet, I am not the Sina the conspirator, I am Sina the poet। बोला tear him for his bad verses, तो इसकी खराब पोइट्री के लिए मार दो इसको। tear him for his bad verses, ये खराब लिखता है, ये पोएट है ना, ये गलत, इसकी इसकी जो पोइट्री है खराब है, इसको मार दो, इसके वर्सेस खराब है, इसको मार दो। ओके सिन्हा द पोएट चिल्ला रहा है, भाई साहब आई एम नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर, प्लीज प्लीज डोंट किल मी, आई एम नॉट सिन्हा द कॉन्स्पिरेटर। फोर्थ सीजन बोल रहा है it doesn't matter, it doesn't matter whether you are a conspirator or not, है ना, his name is सिन्हा। खाली मैटर हम लोग के लिए क्या करता है कि तुम्हारा नाम सिन्हा है और यही तुम्हारा गुना है। ठीक है, प्लक आउट हिज नेम आउट ऑफ हिज हार्ट, बोल रहा है इसके दिल से इसका नाम अलग कर दो और इसको भगाओ यहाँ से, टर्न हिम गोइंग, माने मार के खत्म करो। थर्ड सीजन बोल रहा है टीयर हिम, फाड़ दो फाड़ दो। कम ब्रांड्स हो, फायर ब्रांड्स, आओ सब लोग आओ। ठीक है, और सबको पूरा आग लेकर आओ और जो भी कॉन्स्पिरेटर्स है उनको खत्म करो। उसके बाद हम लोग जाएंगे टू ब्रूटस हाउस, टू कैशियस हाउस, बर्न ऑल, उस लोग को जाएंगे, अगर जिंदा मिल गए तो उन लोगों को जला देंगे, अगर उनका घर मिल गया एंड एनीथिंग विच आइडेंटिफाइज विद देम वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट एंड वी आर गोइंग टू बर्न आउट एवरीथिंग। ठीक है, ब्रूटस का कैशियस का घर, बर्न ऑल। चलो सम टू डीसियस, कोई डीसियस के घर जाओ, सम टू कैस्का, कोई कैस्का के घर जाओ, सम टू लिगैरियस, अवे गो, और सब लोग जाओ, इन कॉन्स्पिरेटर्स को पकड़ो और इन सबको खत्म करो, वी नीड टू किल देम नाउ, अभी के अभी, तुरंत के तुरंत। अंडरस्टूड। तो ये हमारा एक्ट 3 सीन 3 था, बहुत छोटा सा सीन है लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। इसके अंदर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है हम लोग को इस सीन में।
फिकल माइंडेडनेस ऑफ द मॉब्स। जो मॉब होते हैं वो बहुत ही फिकल माइंडेड होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉब्स मेंटालिटी की एंड मैनिपुलेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन। किस तरह से जो पॉलिटिशियंस हैं वो पब्लिक लोग को एजिटेट कर देते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, ठीक है, बाय देयर रिटोरिक्स। मैं तुम लोग को बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस सीन से अगर कोई आंसर आएगा तो आप उसको बहुत आराम से लिख सकोगे। रिटोरिक का मतलब क्या होता है? रिटोरिक का मतलब होता है स्किल ऑफ यूजिंग लैंग्वेज टू परसुएड और इन्फ्लुएंस पीपल, है ना। इट इन्वॉल्व्स चूजिंग वर्ड्स एंड टेक्निक्स केयरफुली टू मेक योर आर्गुमेंट मोर कन्विंसिंग। तो ये वर्ड जो रिटोरिक है आप लोग यूज करना अपने आंसर्स में। फिकल माइंडेडनेस भी यूज कर सकते हो, फिकल माइंडेड भी यूज कर सकते हो, मैनिपुलेशन यूज कर सकते हो, मॉब मेंटालिटी यूज कर सकते हो। ये सारे वर्ड को याद करो। जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ये सब वर्ड को अपने क्या नाम है जो सीन है उसके ऊपर में लिख लो, रख लो, याद कर लो, जिससे जब आप आंसर लिखोगे तो आपको आसानी होगा। ओके, ठीक है।